सर प्रभात गुड सेंटर since it's a debut करने में जब भी कोई तो you know you have some apprehensions something in the mind going on क्या था जब आप अप्रोच कैसे थे इस रोल के लिए what was the thing? सर बहुत साल तक मैं स्टोरी सुनता रहा, स्ट्रगल करता रहा 7 साल तक। और फाइनली जब मैं जयप्रकाश सर को मिला, हमारा डायरेक्टर, तो उन्होंने जब ये प्लॉट बोला, आई वॉज कम्प्लीटली ट्रिगर्ड। मतलब वो जो एंडिंग था, जब आप पिक्चर देखेंगे वो एक 20 मिनट ऐसा क्लाइमैक्स, प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स तक, वो मुझे बहुत ट्रिगर्ड हुआ, एकदम इंस्पायर हुआ। व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। मैम यू हैव डन सम मार्वेलस फिल्म इन द पास्ट, ये प्रोजेक्ट क्यों चुना आपने? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? So as we said, the content of the cinema very importantly, and of course my character. I'm playing a very strong character. Her name is Dani, a very beautiful soul that I'm playing. I think my character is carried from the first shot of the cinema till the climax of the cinema. So I think that was the best part. And of course, as he said, the second half of the cinema is going to keep everyone on the edge of the seat. So it's something very different from the cinema that I've done. So I think I was also looking for something that is content oriented, and That was the The movie Banaras. Why is the name Banaras? बनारस का टाइटल हमको इसी वजह से रखा है क्योंकि 80-85% की फिल्म हमारे वहीं पर ही शूट हुई है, तो इसकी वजह से हम वहाँ पर आ रहे हैं। Good afternoon, sir and madam. The question is about the Banaras city. It is the holiest place and it is the oldest civilization. So, what kind of vibes you experience in Banaras? it was a very beautiful vibe. Look center na ma'am. This is the first time we. या पीछे आजा सेंटर में पूछ। And I visited Banaras in my life, and it's a very beautiful place. As you said, the vibe there is so positive. We were there for 40 days, and I think after 40 days of shoot, we didn't want to come back from the place because when we came back to Bangalore, it was the same old life where you have a lot of noise and all that. See, normally when we shoot in a shooting set, you have a lot of sound. But trust me, when we were shooting in Banaras, we didn't want to make that sound because it was that peaceful, and I think the vibe is very beautiful. Everyone in life should visit Banaras. Could you tell something about the interesting thing while making the film during any incidents? Of course, there is a lot. I think when we were shooting in Banaras, there is a ghat named Manikarnika Ghat where they burn dead bodies. So we used to see almost 200-300 dead bodies every day, like minimum. I'm telling minimum. And the scene was that here is the ghat, and here we had to do. Our dialogues were very peaceful dialogues, very romantic dialogues. So I think that was a challenge for us because it isn't that easy to, show up romance right there. It wasn't that easy. ज़ाहिद, लेकिन आपकी जो एक्टिंग जर्नी है इतनी आसान नहीं रही है। जैसा आपने मेंशन किया कुछ दिन पहले ही कि योर फैमिली डिडंट अप्रूव ऑफ एक्टिंग करियर एज सच, वट एवर बी द रीज़न। सो हाउ हैज़ बीन द जर्नी सो फार? क्या कहना चाहेंगे जर्नी को? और एक वक्त के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, नसीब में एक्टर बनना ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो बिकम एन एक्टर। तो 7 साल का मेरा स्ट्रगल था। तो आई थिंक 2013 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है, कि जो मेरा डांस है, एक्टिंग है, सिंगिंग, वॉटेवर इट इज, ये मुझे अपना करियर बनाना है इसमें। सो आई वेंट एंड टोल्ड माय डैड। तो फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। सो आई थिंक हमारे प्रोड्यूसर हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि हमारे माई गॉड फादर, तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन किया, उन्होंने मुझे एक्टिंग क्लास पर भेजे। आई गॉट ट्रेन देयर। सो आई थिंक दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। ही इज माय गॉड फादर। दिस इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी फिल्म, एक रिलीजियस क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। इन टुडेज टाइम मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, इफ समथिंग हैपेंस लाइक दिस, कोई भी इशू पे बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है, तो कितना ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ा है इस कैरेक्टर को प्ले करने सर में? ये रिलीजियस कल्चर बहुत बढ़िया है। आई विल नॉट से कि ये एक रिलीजियस काइंड ऑफ फिल्म है। आपको जब ट्रेलर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत रिलीजियस के ऊपर होगा या हिंदू मुस्लिम के ऊपर होगा। डेफिनेटली नॉट, बहुत कल्चरल है। सो आप जब देखेंगे तो आपको तब पता चलेगा। मैम, यू हैव बीन One after another, this year, and so what like this film
कंटेंट देख सकते थे कि लाइफ में करते हैं तो नहीं रहेगा? सर बहुत अच्छी फिल्म आ रही है सर गाना इंडस्ट्री से एंड इट इज़ अ वेरी फाइट फॉर एवरी गाना एंड फॉर द इंडिया इंडस्ट्री ऑल्सो। तो हमारी पिक्चर भी गाना इंडस्ट्री से है तो अभी अच्छा इंडिया लेवल पर रिलीज हो रही है। एंड टॉकिंग अबाउट द कंटेंट वाइज कंटेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जब हम लोग शूट कर रहे थे, जब हम लोग पिक्चर स्टार्ट किया, वी नेवर थॉट हम लोग पैन इंडिया करेंगे। बट पिक्चर कंप्लीट होने के बाद जब हम लोगों ने 300-400 शोज़ ऑर्गेनाइज किए तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे बॉलीवुड के फ्रेंड्स जैसे एक्टर्स, कोई एक्टर या स्किल आर्टिस्ट या जितने डायरेक्टर्स हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब लोगों में आई इन्वाइटेड देम टू बैंगलोर। तो बॉलीवुड से, तेलुगु इंडस्ट्री से, तमिल इंडस्ट्री से, अपने मलयालम इंडस्ट्री से, उन सब लोगों को मैंने पिक्चर दिखाई। सो दे आर द वन हू गिव मी दैट स्ट्रेंथ कि योर कंटेंट इज वेरी गुड, यू हैव टू फील द कैरेक्टर एंड द मेकिंग इज excellent, amazing. So I think you have to do it in pan India. So that is where I got that strength, and I think that is the one reason my producer changed his mind to do it in pan India. मैम यू बीन पार्ट ऑफ मेनी मूवीज़, कन्नड़ा मूवीज़। जब से KGF का सक्सेस हुआ इतना नॉर्थ बेल्ट में या ऑल ओवर इंडिया, तब से आपको लगता है बार रेज हुआ है कन्नड़ा इंडस्ट्री का? देयर इज एन बार रेज ऑफ द सक्सेस KGF के बाद से? 100%. I think KGF is something that changed the complete outlook of the Kannada film industry, because I remember I was in Warsaw for 1 year, like long back when I was doing ads. But that time when I used to tell I am from the South film industry, they were like, okay, you're from South film industry. But today when I come here and say that I'm from the South film industry, the first thing that comes in your mind is KGF and Pushpa. So I think we're very proud, of course, and it has also helped us, and KGF has actually made a path for us. So it's created a path for all the other cinemas that want to release pan India. It's given us that strength and confidence. एंड इवन बिग स्टार्स लाइक सलमान सर इज बीइंग पार्ट ऑफ साउथ इंडस्ट्री, ये कितने पॉजिटिव स्टेप है कि पहले बड़े स्टार साउथ इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होते थे, आज हैं। और उनका मानना है कि आगे चलकर दिस इंडस्ट्री विल बिकम 3,000-4,000 करोड़ बिजनेस। आई मीन 100% looking, I hope so, I hope this happens. As of now, we are into 250 crores, I think. And let's see, hoping one day we would reach there. but दो गाने हैं रोमांटिक का तो अभी रिलीज हो गया है माया दोस्त। तो दैट इज़ अ हीरो पॉइंट ऑफ व्यू का गाना रहेगा। एक रोमांटिक गाना है, शायद आपको ट्रेलर में थोड़ा बहुत उन्होंने ये रिलीज किया है हमने। तो आई थिंक थोड़े दिन में हम लोग रिलीज करेंगे। टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म बेल बॉटम बनाई उन्होंने, इतना डिफिकल्ट टाइम्स में एक फिल्म बनाया, तो कितना आपको लगा कि उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जो डायरेक्टर का पर्सन क्या कहेंगे? तो सबसे पहले एक हमारे कन्नड़ा इंडस्ट्री में डायरेक्टर है जानते हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक डायरेक्टर है, नाम है जय कीर्ता करके, वीक है, आई थिंक तेरी और उनकी बॉडी अच्छी मिल जाएगी। तो बेल बॉटम का रिलीज दिन था, तो उस दिन मैं अपने हमारे डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, बट सर ऑल्सो वॉज वेरी स्ट्रेट बिकॉज आई बिलोंग टू अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो उनको ये डर था कि मेरा ईगो, मेरे डायरेक्टर थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेंगे रहते। तो मैं बोला कि थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू नो यू योर बॉडी लैंग्वेज, एक किस चीज़ से तू मतलब यू गेट हैप्पी फॉर, यू गेट सैड फॉर, यू नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो हम लोगों ने 3 महीने हम लोगों ने एक दूसरे का स्पेंड की। आई थिंक दैट इज़ वेरी अंडरस्टूड मी एंड गिव मी बट व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ रिच एंड इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड, ये स्ट्रगल फेज जो होता है वो कितना ज़्यादा हाउ डिड फाइंड है? सर आई थिंक अगर कोई भी एक्टर अगर जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आई थिंक ही इज़ अ वेरी लकी पर्सन। आई पर्सनली बिकॉज एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बैकग्राउंड नहीं होने से उसके कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उसका कुछ बैकड्रॉप है। बट अगर एक बैकड्रॉप है, अगर कोई पॉलिटिकल फैमिली से कोई लड़का आ रहा है या फिर कोई फिल्म स्टार का बेटा अगर लॉन्च होता है, एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। अभी एग्जाम्पल में अगर मुझे 2 तरीके से बताना पड़ेगा, इफ आई एम अ न्यू कमर, तो अगर न्यू कमर की पिक्चर रिलीज होती है तो किसी का बैकग्राउंड है, तो आप थिएटर पर जाते हैं, नॉट गिविंग एक्सपेक्टेशन, तो आप जाके पिक्चर देखते हैं, पिक्चर इज गुड, यू विल गो ना, मतलब आप एकदम खुश हो जाते हैं, बहुत इज वेरी गुड, सिनेमा इज वेरी गुड। अगर वही एक फिल्म स्टार की पिक्चर, फिल्म स्टार के बेटे की पिक्चर या फिर एक पॉलिटिशियन के बेटे की पिक्चर अगर रिलीज होती है, तो आप एक एक्सपेक्टेशन रखते चलते हैं कि ऐसी होगी, वैसी होगी, वैसी होगी। अगर मैं कितनी भी मेहनत करूँ, मैं कुछ भी करूँ, आपको फील कम नहीं होगा। वन मोस्ट बैकड्रॉप फॉर द बैकग्राउंड।